Yeah, okay. The session is in recording now. Now, who is the shortest? Who is the shortest among this one? Can you arrange them in Dolly is shortest. Yes, very good. Arrange them in increasing order of their heights. Very easy. Arranging, right? Increasing order of heights. So first one will be increasing. सबसे छोटा उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े और सबसे बड़ा. Right? Come on. Yes, sir. This is in textbook or notebook. In the notebook only. We don't do anything in the textbook. Textbook days are gone. है ना? वो 5th standard की textbook में होता था सब मस्ती वाला काम काज. है ना? अभी 6th standard में तो सब कुछ notebook में करना है. Right? So we will start with Dolly, then Mohan, then Shashi, and then Ramhari. Okay? That is the increasing order. So, shortest to the tallest. And then in the decreasing order of their heights also, page number is what? Page number is, what is the page number here? Admit कर लेते हैं पहले जिया को. Page number is, पे पेज नंबर दिख रहा है, नंबर 4, पेज नंबर 4. ठीक है. Now this is something else also, right? Clear all drawings. Yes. So which to buy? Which one is right? There are many almiras available with their price tags. There are some different cupboards or almiras with their price tag. Can you arrange their prices in increasing order? Come on, note it down in your notebook. The prices in increasing order. This is nothing but ascending and descending the numbers. चलो, सबसे कम प्राइस वाली कौन सी है? We have to check the numbers. So the lowest price is for this one, right? So we'll number it now. 1, 2, then 3. This is 4. This is 5. है ना? Easy. Now you can arrange them. So now you can arrange them easily. You can do it. Can you arrange their prices in decreasing order? Decreasing order, increasing order कर सकते हो. Yes. Now think of 5 more situations where you compare 3 or more quantities. What is quantities? Quantities as in some of the objects where you either measure the height, weight, price, volume, because we know volume also, है ना? हमने volume भी तो पढ़ा हुआ है, right? तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट है. ओके. किचन में जा करके ठीक है, आपको क्या करना है? किचन में जहाँ पे सामान रखा हो मम्मी ने, अगर किसी अलग अलग पैकेट्स के ऊपर प्राइस लिखी है तो वो प्राइसेस को पांच ऑब्जेक्ट्स विद प्राइसेस, है ना, और उनके रुपीस को इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में आपको करना है. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, ये आपको करना है. ओके, right? Ascending order means arrangement from smallest to the greatest. Descending means arrangement from greatest to the smallest that we have got. Okay, now let's talk further. Try these. Arrange the following numbers in ascending order. Only first one we will do. Only option A we will do, and from this one option 2. Come on, do it. Come on, let's do it. Come on. Come on, everyone. Answer. For the first one, numbers in ascending order. So the smallest to the greatest. Which is the smallest? 571. Now when we are arranging, we have to put the less than sign also. 571 is less than 847. It is less than 8320, which is less than 9754. So option answer for the A1 is this one.
Question 1A. Now let's do 2A. Sorry, 2B we are doing, right? 2B. We are doing for 2B. Descending order. So you have to go for the largest number. 92,547 is greater than 88,715 is greater than 45,321 is greater than 1,971. चलो कर लो. इजी है ना, ये तो बहुत इजी है, राइट? दिस इज वेरी इजी. This chapter is very easy. This is going to be very quickly over. है ना? Come on, come on, come on, come on. Yes, Anya, please unmute yourself and talk to me. Anya, unmute. Bolo. Sir, the other options we have to do in homework Yes. notebook. This is homework. This is also homework. Okay? Done? Chalo. I'm going to clear it all. And we are going for the next one, where we are talking about the shifting digits. All right. Have you thought what fun it would be if the digits in a number could shift from one place to another? Think about what would happen to 182. It could become as large as 821 to as small as 128, है ना? यहाँ से 8 को उठा करके ऊपर रख दिया, ये 1 को पीछे रख दिया, ऐसा कर सकते हैं ना, right? So this is playing with your numbers, okay, right? So what do we have? Take any three-digit number and exchange the digit at the hundreds place with the digit at the ones place. हंड्रेड्स के प्लेस पर है, उसको उठा करके वंस के प्लेस पे डालो, वंस वाले को उठा करके हंड्रेड्स के डिजिट्स के प्लेस पर डाल दो. ठीक है, तो ये करने में बड़ा मजा आने वाला है हम सबको. We are going to enjoy this. We have to write this in homework in HPP. The homework, yes, homework in home practice book, yes, right? Then you have to answer this question: is the new number greater than the former one? Is the new number smaller than the former number? Former मतलब पहले वाला, right? What is the former number means? Former मतलब the one that was before, है ना? Former मतलब the one that was before. Okay, उससे पहले वाला जो था वो. Yes, once, just a second बेटा. Okay, you want to note it down, please note it down. What is the meaning of former? वंश बोलो बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को और बोलो. Sir, if we can change the place of the hundreds to ones and ones to hundreds, then sir, why can't we change the place of tens? No, right now they have given us instructions. When we do practice, we can change the tens place also, right? That we will do. Okay, sir. Yes, Okay, sir. Akshat. Yes, Akshat. बोलो बेटा. Ma'am, sir, yesterday, Mm-hmm. eh, Mm-hmm. sir, yesterday, ma'am has given the homework, so I had done this, try this, so it's okay Yeah, okay. All right. No in the problem. home practice book. Okay, okay. No problems. No problems, beta. Okay. So you can see that. Yeah. So here before it was 795, now they have become 597. They haven't changed the number in tens place, right? Like once asked. We exchange the first and third tiles digits. In which case does the number become greater? कौन से वाले नंबर बड़ा होगा? 795. Now you can try with like once said. Now this is something which you can play with your siblings, है ना? बड़े भाई या छोटे भाई के साथ खेल सकते हो, मम्मी पापा के साथ खेल सकते हो. कैसे करोगे? पापा को बोलना है कि भाई चलो ये 9 को यहाँ पे ले आए, ये इस नंबर को यहाँ पे लाए, राइट वंश? Or you can switch the places between ones and tens and hundreds. You can go for as many numbers as you want. You can go for 3, 4, 5 digits, whatever you want to try, and then you can play along, है ना? Right? Now look at this one, introducing 10,000.
Beyond 99, there is no two-digit. 99 is the largest two-digit number, greatest two-digit number. Greatest three-digit number is 99, 999. Greatest four-digit is 9999. And look at all of them. 9 plus 1, 10. 99 plus 1, 100. So the greatest two-digit number, when you add one more, you get smallest three-digit number. है ना? This is greatest, है ना? And this is smallest, right? These are going to be smallest, right? Correct? This is smallest two-digit number, smallest three-digit number, smallest four-digit number. है ना? Isn't it interesting that when you have come to 99, 999, 9999, 99,999, उसमें अगर एक ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? It becomes 1 lakh, and which is the smallest six-digit number, है ना? So this is how the numbers keep growing, right? This is why the numbers, they do not have an end. Now revisiting the place value, this is something also you understand. Splitting up the number, we can, you know how to write this. Okay, so let's do some practice. Write this number 32,578 in this way. Can you do it? 32,578. Yes, one's coming to you in a second, beta. So 32,000 will become what? 3 into 10,000 plus 2 into 1,000 plus 5 into 100 plus 7 into 10 plus 8. We can write it this way. Yes or no? Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. Digitally. Give me a thumbs up. Expanding the numbers, है ना? This is what we studied in grade 4. हाँ, वंश बोलो. अरे वंश, आपका तो अनम्यूट ही था. बोलो, क्या कहना है? सर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 7 into 10 plus 8 into 1. हाँ, 8 into 1 भी लिख सकते हो. Any number multiply with 1 is the same number. Very good. Okay. That is correct. And sir, if we have to, you first tell that there will be, we have to make 4 digits, and that at the first. That is game you can play. That game you can play with your parents. But sir, if we have given 3 digits and we have to make 4 digits, so sir, we have to double twice Yes. the One smallest number. of the number you will have to use it twice. है ना? Okay, sir. Good. Thank you. That's good. Welcome, beta. Okay. Now, okay, going to the next part. है ना? Now you can continue like this. All right. Expand these numbers. Read and expand the numbers wherever there are blanks. Where are the blanks? 65,740. है ना? Right? 26,000. तो यहाँ पे बाकी के प्लेसेस में क्या है? 0. है ना? तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 10, लास्ट डिजिट को सीधा 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा आंसर? आर्यन रुक जाओ बेटा 2 मिनट के लिए, आपसे बात करेंगे, है ना? राइट, 89,324. सेम वे में कोई मुझे इसका एक्सपेंशन करके देगा? इसका एक्सपेंशन करके दिखाओ. चलो तब तक मैं आर्यन से बात कर लेता हूँ. आर्यन को कुछ बोलना है. आर्यन चौधरी बोलो बेटा. यस, मैं ऐसा बोल रहा था कि मैं लिख रहा था ना, तो बीच बीच में कट कर रहे थे ना, वो काम वो से मेरा आधा काम रह रहा है. मैं क्या करूं? बेटा अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ा तो फास्ट काम करना पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं. पर आप ऐसे बीच बीच में कट करोगे तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा. क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप बाद में यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है? लेकिन थोड़ा स्पीड पकड़ो बेटा, ठीक है? आपको थोड़ा स्पीड पकड़ने की जरूरत है. ओके, ऑलराइट. सो
what will be the expansion of this one? This will become 8 into 10,000. फिर 1000 के प्लेस पर क्या है, तो क्या हम लिखेंगे ये 0 into 1000 लिखना पड़ेगा क्या, राइट? 5 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 4 into 1, जैसे कि वंश ने कहा कि 4 वंजा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये और ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 into 10,000 प्लस 5 into 100 प्लस 4, है ना, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया सबको? ये आर्यन बोलेगा देखो सर आपने फिर से रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, है ना, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आपको भी, राइट? चलो फिर नेक्स्ट वन, राइट? तो ये बाकी के एग्जांपल्स आपको ये अभी ये वाला आप टेक्स्ट बुक में कर सकते हो, टेक्स्ट बुक ओनली, दिस वन यू कैन डू इट इन द टेक्स्ट बुक ओनली, इजी है तो कर लो, बाकी कुछ है नहीं इसमें, है ना? यस अक्षर, वेरी गुड, दीज सम्स आर वेरी इजी, राइट? सो जस्ट अ सेकेंड ना बेटा, ठीक है, ऑल राइट, ओके, सो अरे बाकी किसी को कुछ लिखना नहीं है इसमें, हाँ? Introducing 1 lakh, same way you can go for 1 lakh also, so you can try these numbers also as your homework. Pushti, stop writing on this one beta, this is also your homework, this is your homework, है ना? होमवर्क ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है, एक्सपेंशंस, ओके, ठीक है, चलो लिख लो जरा फिर से अच्छे से सब लोग। Sir, I'll write all these in homework book, so I write it again. Oh, it's okay, do it. If you have already written then in the textbook, then it's fine, beta. है ना? Going further, large numbers. ये कौन है? उचित पारेख, शुभ पारेख. Please stop writing, beta. वरना मुझे आपको ओके मैं सबको ही अनेबल कर देता हूँ, ठीक है, कोई अभी नहीं लिख पाएगा। सो वी हैव गॉट 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, है ना? हमने ऐसा, तो ये टेबल आप सबको याद करना है, रिमेम्बर, ठीक है? तो इसके ऊपर से हम क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि 1 करोड़, जैसे कि ये 5th स्टैंडर्ड में हमने किया था, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, है ना? हाउ मेनी लैक्स, तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ? 1 करोड़ इज हाउ मेनी लैक्स, ठीक है? फिर मैं पूछ सकता हूं कि 5 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड्स, 5 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड्स, तो क्या आएगा उसका आंसर? 1 करोड़ इज 100 lakhs, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट आंसर। जीत जरा देख लो बेटा, 50,000, अरे ऐसा कहां से हो गया? देखो हमने क्या कहा, 5 करोड़, है ना? देखो ऐसे एग्जांपल्स जब आएंगे ना तो थोड़ा सोचना पड़ता है, अगर इनफ प्रैक्टिस नहीं है तो पहले तो 5 करोड़ लिखना पड़ेगा, 5 करोड़ ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये 5 करोड़ है ना, राइट? अभी क्वेश्चन क्या है, इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड्स, राइट? तो हमें थाउजेंड्स तक के स्टेप्स गिनने, इतने थाउजेंड्स है, राइट? तो कितने हो गए? 1s, 10s, 100, 10,000, 50,000, तो उसका आंसर होगा 50,000। आप वर्ड में भी लिख सकते हो या फिर नंबर में भी लिख सकते हो, थाउजेंड्स, है ना? यहाँ पे आंसर आएगा 50,000, थाउजेंड्स, ठीक है? ऐसे करना पड़ता है। यस, वेरी गुड,
अगर 50,000 सिर्फ लिख दिया तो मतलब हो जाएगा सिर्फ 50,000, विच इज रॉन्ग. 50,000 थाउजेंड्स. ठीक है. ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस हमने लास्ट ईयर जब फर्स्ट चैप्टर चलाया था द फिश टेल, तब उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छे से आंसर भी किया था. सो एक बार अगर याद नहीं है तो लास्ट ईयर की नोटबुक देख लो, हो जाएगा. हमने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की है. ठीक है. चलो कमन. वैसे ही अगर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं कोई भी डिजिट का, कितने भी डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं और उसमें से एक कम करते हैं तो लार्जेस्ट, लेकिन कितने डिजिट कम हो जाएंगे? एक डिजिट. यहाँ पे देखा 10-1 क्या मिलेगा? ये 10 क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. जबकि हमें आंसर में क्या मिलेगा? 9, विच इज लार्जेस्ट और द ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर. 100 क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. -1 क्या हो जाएगा? 99. मतलब क्या हो गया? इट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. है ना? यस उचित पारिक, दैट वाज करेक्ट. राइट. यस. सो सेम वे वी कैन गो फॉर द रेस्ट. है ना? द नियर बाय टाउन वुड बी मच लार्जर. चलो ये एक वाला क्वेश्चन करते हैं. For example, while the number of children in your class would be 2-digit number, the number of children in your school would be 3 or 4-digit number, right? Number of people in the nearby town would be much larger. Is it a 5, 6 or 7-digit number? ये हमें पता करना है. पता करो कि number of people in the nearby town मतलब कि क्या हो गया? पॉपुलेशन. क्या वर्ड है इसके लिए? ये नया वर्ड है आपके लिए शायद से, लेकिन आपको शायद पता भी हो सकता है. पॉपुलेशन है ना? तो आपको ढूंढना है पॉपुलेशन ऑफ आनंद सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, और दोनों में डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है. ठीक है. ये आपके लिए आज की चैलेंज है. You have to find population of Anand city and Anand district and the difference between the two numbers you have to find. ठीक है. वो आपको गूगल पर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन आसानी से आंसर मिल सकता है. और फिर सबट्रैक्शन तो आपको आता ही है, राइट? यू आर वेरी स्मार्ट, है ना? आप कर सकते हो, राइट? ओके. You have to find population of Anand city and Anand district. फिर ये वाला, give 5 examples where the number of things contained would be more than 6 digit number. ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें 6 digit से नंबर से ज्यादा कंटेंट होगा उसके अंदर, है ना? राइट. जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, वेरी गुड, राइट? पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली तो करोड़ भी जाएगा बेटा, राइट? Starting from the greatest 6 number, write the previous 5 numbers in descending order. Previous मतलब उससे पहले वाला. So greatest 6-digit number. What is greatest 6-digit number? Right? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. है ना? Greatest 6-digit number 9,99,999. और इसके previous 5 number तो क्या हो जाएंगे वो? 8, 7, 6, 5, 4. लेकिन उससे पहले 9,99,998, 97 ऐसे करना है. ठीक है ना? जरा ध्यान से करना वो ये. और थर्ड वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स. ये भी आप आसानी से कर सकते हो. ठीक है. वेरी गुड. ओके. राइट. सो दिस ट्राई दिस वाला ये जो है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर होमवर्क. लिख लो. चलो ये वाला हो जाएगा आपका होमवर्क. लिख लिया सबने? शैल वी गो अहेड? चलो आगे चलते हैं ताकि परेशानी ना हो बाद में. गुड. लेट्स गो अहेड. एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स. हाँ, तो हम कॉमा क्यों रखते हैं? हम कॉमा क्यों रखते हैं? ताकि हमें नंबर पढ़ने में आसानी हो जाए, राइट? 2,79,453 ये हो जाएगा 50,35,473. ये हो जाएगा 4,03,50,894.
तो हम कॉमा कहाँ पे रखते हैं वो सब बातें, तो ये तो आप फटाफट कर लोगे सबके सब। यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू कैन डू दिस, है ना। ये बीच में 2-3 दिन गए हमारे, तो जरा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ये आप कर सकते हो एक्सपेंशन करके। तो ये सब के सब ऑल स्टूडेंट्स, राइट, ऑल स्टूडेंट्स, आप सबको ये वाला टेबल, है ना, ये वाला टेबल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक टेबल आप A4 साइज के चार्ट पेपर पर बना सकते हो, वो आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, ठीक है। ओके, गोइंग फर्दर, ये एक टेबल अच्छे से करना है। हमने ये ऐसा टेबल 5th स्टैंडर्ड में भी किया था। आई एम श्योर ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन इट, right? Use of commas, right? While writing number names we do not use commas, always remember. Indian system of numeration we do every 2 digits, है ना, हर 2 digit के बाद, और इनिशियली पहले 3 digit के पहले होता है और उसके बाद सारे 2 digits में होता है, right? You already know this, we have done enough practice on this one, right? And international system of numeration is little bit different, right? They deal in millions, billions, trillions. They are, that also we have seen, right? So another question is 1 billion is 1,000 millions, right? So 1 billion is equal to how many crores, right? 1 million is equal to how many lakhs. ये होमवर्क है आपके लिए। 5 billion is equal to how many lakhs? 2 million is equal to how many thousands? ओके, ये 4 आपके लिए एक्स्ट्रा होमवर्क है, राइट। मजा आएगा, ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, बहुत छोटे छोटे सम्स है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कर लो जरा फिर से। वन, right? Any question? Yes, in homework notebook. Okay, now I'm going to clear it up. एक काम करो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ले लिया? गुड। चलो फिर, क्लियर ऑल ड्राइंग्स एंड स्टॉप शेयर। बोलो, अभी एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं जिसके हैं। निर्जा की क्वेश्चन, पहले तो निर्जा बोलो बात। निर्जा। सर, हाँ जी बोलिए। सर वो ब्लू टेबल आप A4 साइज पेपर में बोल रहे थे, वो अच्छे से सुनाई नहीं दिया, आपका वॉइस क्रैक हो रहा था। अच्छा, नहीं, वो A4 साइज के पेपर पर अच्छे से उसको डेकोरेट करके बनाना है आपको, ठीक है। दैट विल बी योर एक्स्ट्रा, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज योर प्रोजेक्ट, सो वी विल सी अबाउट दैट, ठीक है। यस मनवी, अनम्यूट करो। हाँ सर, हाँ जी। put this recording on. सॉरी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। सर, हाँ आप ये रिकॉर्डिंग बेटा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो या फिर कॉल कर लेना, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। आनिया बुज बोलो। सर, आपने जो होमवर्क दिया पेज नंबर 7 पर, वो ट्राई दिस रीड द एक्सपांड नंबर लैख वाला, उसके ऊपर भी आपने दिया है, वो भी हमें होमवर्क नोटबुक में लिखना है या वो हमें टेक्स्ट बुक में लिखना है? होमवर्क। यस। बोलो ध्वनि। बोलो ध्वनि, कहाँ गई?
आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आपका शायद माइक्रोफोन बिगड़ा हुआ है। सृष्टि त्रिवेदी बोलो। सर ट्राई दिस चैट कब तक सबमिट करना है? ओ मैं बताऊंगा आपको, सबमिशन कब करना है बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है। वृता बोलो वृता। Sir, you will send all the homework in Google Classroom. गूगल क्लासरूम मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। गूगल क्लासरूम में कितना याद रखेंगे, और ये सब ट्राई दिस, तो देखो ट्राई दिस में तो सब कुछ जितना भी ट्राई दिस है ना, वो सब आपको होमवर्क नोटबुक में ही करना है। उसमें से जितने हो सकेंगे वो हम क्लास में करेंगे, वो आपको क्लास नोटबुक में लिखना है, बाकी सब होमवर्क में ही जाएगा, ठीक है। ट्राई दिस सारे तो सारे एग्जाम्पल उसी में जाएंगे, ठीक है। बोलो अक्षत लास्ट। यस मनी, आई विल सर put the recording in on YouTube. Yes. सर मेरे को ना वो आप बोल रहे थे ना ट्रिलियन के बाद भी आता है, मुझे ना सबसे लास्ट डिजिट है ना जो इंडियन सिस्टम का है वो शंख है, और उसका वो इंटरनेशनल का 100 क्वाड्रिलियन है। वेरी गुड। एक काम करो, दादाजी से, दादाजी को ये अच्छे से पता होगा शंख निशंक वाला, तो वो आप उनसे लिख करके फिर मुझे शेयर करना, ठीक है। सर मैंने दादाजी से ही पूछ के सारा मुझे पता था लिखा था। आपके दादाजी बहुत स्मार्ट